Hello everyone, this is our next video and now the topic of discussion is cardiovascular system. सबसे मेजर और काइंड ऑफ टीडियस सिस्टम जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So today in this video we'll be trying to cover anatomy and physiology of heart and also pulmonary and systemic circulation. So let's start. हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज बेसिकली ऑल अबाउट हार्ट. ये सब आपको पता ही है. अभी एग्जैक्टली इसमें क्या क्या है ये अभी हम स्टार्ट करते हैं. ओके. हार्ट हार्ट इज अ रफली कोन शेप्ड hollow muscular organ. It is about 10 centimeter long and is about the size of owner's fist. मतलब आपकी फिस्ट का साइज अगर इतना है तो आपका हार्ट भी इतना सही है. It weighs about 225 gram in women and is heavier in men, about 310 gram. The heart lies in the thoracic cavity in the mediastinum, the space between the lungs. It lies a little more to the left than the right and presents a base above and an apex below. Important characteristics of heart. पहला point. Lies in the thoracic cavity. Second, in the mediastinum, the space between the lungs. अगर ये lungs है तो इसके space के middle में mediastinum जिसको बोलते हैं वहां पे heart lie करता है and slightly to the left side. First, thoracic cavity. Second point was mediastinum and slightly to the left. और heart अगर ऐसा heart है तो this is the apex and this is the base. So base above and apex below. The heart possesses the property of autorhythmicity, which means it generates its own electrical impulses and beats independently. ऑटोरिदमिसिटी खुद का सिस्टोल डायस्टोल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन खुद ही जनरेट करता है. इट इज इनवॉलंटरी. ऑटोरिदमिसिटी इसका प्रॉपर्टी है. वी हैड लर्नड अबाउट दिस इन द टिश्यूज वाला चैप्टर ऑल्सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग कार्डियक मसल. It is supplied with sympathetic and parasympathetic fibers which increase and decrease the intrinsic heart rate. ये डायग्राम है. देखो, दिस इज द thoracic cavity. So this is the mediastinum between two lungs, space between two lungs, slightly to the left. This is the apex of the heart. अभी हम लोग एक्सटर्नल टू इंटरनल जाएंगे. ये हमारा हार्ट था, राइट. तो पहले हम लोग इसका आउटर वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम लोग इनसाइड इसमें क्या क्या प्रेजेंट है वो देखेंगे. पहले आउटर वॉल फिर इनसाइड, पहले एक्सटीरियर फिर इंटीरियर. ओके. So basically, heart wall is composed of three layers of tissues: the pericardium, the myocardium, and the endocardium. Pericardium. पेरिकार्डियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एंड इट इज मेड अप ऑफ टू सैक्स. मतलब समझो ये तुम्हारा पेरिकार्डियम है फॉर एग्जांपल, तो इसके दो सैक्स है, दो सैक से बना हुआ ये. आउटर सैक इज फाइबरस पेरिकार्डियम एंड इनर इज सीरस पेरिकार्डियम. कुल मिला के बन जाता है पेरिकार्डियम. आउटर इज फाइबरस, इनर इज सीरस. पहले हमने ये देखा कि पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर है, फिर उसका आउटर सैक इज मेड अप ऑफ फाइबरस पेरिकार्डियम consist of fibrous tissue and inner the serous pericardium, double layer of serous membrane. Fibrous pericardium is inelastic fibrous in nature which prevents over distension of the heart. Over distension मतलब इंटरनल प्रेशर की वजह से हार्ट का साइज बढ़ रहा है, इंटरनल प्रेशर की वजह से साइज इंक्रीज होता है, पर इससे हार्ट की मसल पे, हार्ट के ऑटोरिदमिसिटी पे देयर इज नो काइंड ऑफ इफेक्ट. तो ये प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारा फाइबरस पेरिकार्डियम. ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, राइट. तो इसके वजह से हार्ट के मसल पे, हार्ट पे, खुद पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा है एंड दिस प्रोटेक्शन इज गिवन बाय फाइबरस पेरिकार्डियम. Outer layer of the serous pericardium, parietal pericardium, lines the fibrous pericardium. Inner layer, the visceral pericardium, which is continuous with the parietal pericardium, is adherent to the heart muscle. ये जो सीरस पेरिकार्डियम है उसके भी दो लेयर्स हैं, एक पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरा विसरल पेरिकार्डियम. पैराइटल पेरिकार्डियम फाइबरस पेरिकार्डियम को लाइन कर रहा है, फाइबरस पेरिकार्डियम के यहाँ पे है, एंड विसरल पेरिकार्डियम इज कंटिन्यूअस विद द पैराइटल पेरिकार्डियम. सो दो लेयर्स थे सीरस के भी, एक पैराइटल और एक विसरल. Serous membrane consists of flattened epithelial cells which secrete serous fluid, also called as pericardial fluid.
into the space between the visceral and the parietal layers. ये विसरल और पैराइटल लेयर्स के बीच में ये सीरस मेम्ब्रेन सीरस फ्लूइड सिक्रीट करता है, also called as pericardial fluid, which allows smooth movement between them when the heart beats. हार्ट के स्मूथ मूवमेंट के लिए ये हेल्प करता है. तो बेसिकली पेरिकार्डियम, एक फाइबरस पेरिकार्डियम, फिर सीरस पेरिकार्डियम, फिर फाइबरस पेरिकार्डियम इज फाइबरस इन नेचर एंड प्रिवेंट्स ओवर डिस्टेंशन. सीरस पेरिकार्डियम अगेन दो लेयर से बना हुआ है, पैराइटल और विसरल. इन पैराइटल और विसरल के बीच में क्या है? सीरस फ्लूइड, जिसको ही हम पेरिकार्डियल फ्लूइड भी बोलते हैं. और इसका वर्क क्या है कि ये स्मूथ मूवमेंट करता है बिटवीन द हार्ट बीट्स. दिस वाज ऑल अबाउट पेरिकार्डियम. अभी हम लोग मायोकार्डियम की तरफ जाते हैं. मायोकार्डियम. Myocardium is composed of specialized cardiac muscle found only in the heart. This point we have studied in the tissues wala chapter. Again I am reminding. It is striated like skeletal muscle but not under voluntary control. खुद के कंट्रोल में नहीं है. Autorhythmicity एग्जीक्यूट करता है. Each fiber cell has a nucleus and one or more branches. ये पॉइंट भी हमने कैसा याद रखा था कि ये अगर हार्ट है तो इसके ऊपर से ब्रांच है, aorta and all. So that is the point how we have remembered. The ends of the cells and their branches are in very close contact with the ends and branches of adjacent cells. Microscopically, these joints or intercalated discs are thicker, darker lines than the striations. Intercalated discs, those cells जहाँ पे joint होते हैं in cardiac muscle, that is known as intercalated discs. So first point was it consists of striations, nucleus, not under voluntary control, and intercalated discs. This arrangement gives cardiac muscle the appearance of being of a sheet of muscle rather than a very large number of individual cells. ये जो अरेंजमेंट है उसी के वजह से कार्डियक मसल एक शीट के फॉर्म में अपीयर हो जाता है इंस्टेड ऑफ being appeared as an individual cells. When an impulse is initiated, it spreads from cell to cell via the branches and the intercalated discs over the whole sheet of muscle, causing contraction. जब भी एक इम्पल्स जनरेट होता है वो ऐसे सेल टू सेल, ये सेल से ये सेल तक इंटरकैलेटेड डिस्क थे, ब्रांचेस थे, वहां से ये स्प्रेड हो जाएगा एंड फाइनली एंटायर मसल पे स्प्रेड होके कॉन्ट्रैक्शन करेगा. Running through the myocardium is also the network of specialized conducting fibers responsible for transmitting the heart's electrical signals. Myocardium से एक network of specialized fibers भी जाता है जो हेल्प करता है ट्रांसमिशन में हार्ट के सिग्नल्स को. मायोकार्डियम इज थिकेस्ट एट द अपेक्स एंड थिन्स आउट टुवर्ड्स द बेस. ये हार्ट था तो अपेक्स के साइड पे मायोकार्डियम थिक है और बेस के साइड पे थिन है. इट इज थिकेस्ट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल विच हैज द ग्रेटेस्ट वर्कलोड. लेफ्ट वेंट्रिकल सप्लाइज ब्लड टू द एंटायर बॉडी. सो लेफ्ट वेंट्रिकल का मायोकार्डियम इज थिकेस्ट. लेफ्ट वेंट्रिकल का मायोकार्डियम इज थिकेस्ट. Specialized muscle cells in the walls of atria secrete atrial natriuretic peptide. What this atrial natriuretic peptide does, we'll see further. Fibrous tissue in the heart. The myocardium is supported by a network of fine fibers that run through all the heart muscles. This is called fibrous skeleton of the heart. So this was all about myocardium. पहले हम लोग ने उसके फाइबर्स के बारे में समझा कि स्ट्राइएशंस है, नॉट अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल, न्यूक्लियस है, ब्रांचेस है, इंटरकैलेटेड डिस्क है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का सबसे थिकेस्ट है मायोकार्डियम, स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स है जो सीक्रेट करते हैं एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एंड ऑल्सो अबाउट फाइबरस टिश्यू इन द हार्ट विच इज ऑल्सो नोन एज फाइबरस स्केलेटन ऑफ द हार्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट एंडोकार्डियम. Endocardium. This lines the chambers and walls of the heart. What is chambers and walls? Chambers and walls basically ये हार्ट था, ये हम लोग ने पहले आउटर लेयर समझ लिया. अभी ये इंटीरियर, तो इंटीरियर में चेम्बर्स और वॉल्स आएंगे तो हम लोग वो आगे पढ़ेंगे. तो एंडोकार्डियम बेसिकली लाइंस द चेम्बर्स एंड वॉल्व्स ऑफ द हार्ट. थिन स्मूथ मेम्ब्रेन टू एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट. अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली एक बार दिखा देती हूँ एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम के बारे में. सबसे पहले पेरिकार्डियम, उसमें भी फाइबरस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम. सीरस पेरिकार्डियम के दो लेयर्स, पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम और विसरल सीरस पेरिकार्डियम.
और इन दोनों के बीच में क्या था, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो दिस वाज फाइबरस पेरिकार्डियम, दिस इज सीरस, सीरस के दो, विसरल और पराइटल, और इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो दिस टुगेदर फॉर्म्स द पेरिकार्डियम। ये कुल मिला के बन जाएगा आपका पेरिकार्डियम। फिर मायोकार्डियम। मायोकार्डियम का इन्होंने और जूम करके आपको पिक्चर दिखाया है, कार्डियक मसल्स। this this is intercalated discs, this is the branching, and this is the nucleus, this is the striations, and finally the endocardium, which lines the chambers and walls of the heart. So this was all about the exterior of the heart, peri, myo, and endo. Now we'll be moving interior of the heart. So the heart is divided into right and left side by a septum, a partition. अभी हम लोग ने समझ लो हार्ट को खोल दिया, तो ये सेप्टम है, इससे हम लोग ने इसको राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आई विल शो इन द डायग्राम आल्सो, सी राइट एंड लेफ्ट पार्ट, ये सेप्टम है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में हम लोग ने इसको डिवाइड कर दिया है। आफ्टर बर्थ ब्लड कैन नॉट क्रॉस द सेप्टम फ्रॉम वन साइड टू द अदर। बर्थ होने के बाद एक साइड से दूसरे साइड पे ब्लड नहीं जा सकता। हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स, टोटल 4 चेम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, पहले राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर दिया, फिर अबव एंड बिलो भी डिवाइड कर दिया। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। Each side is divided by an atrioventricular valve into the upper atrium and the ventricle below. ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को भी डिवाइड किया किसने, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच वाला एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, और ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच वाला एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। बेसिकली एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्या है, डबल फोल्ड्स ऑफ एंडोकार्डियम स्ट्रेंथेंड बाय लिटिल फाइबरस टिश्यू। जो हमारा एंडोकार्डियम है उसके डबल फोल्ड्स और थोड़ा सा फाइबरस टिश्यू से बन जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। The right atrioventricular valve, also known as tricuspid valve, has 3 flaps or cusps, and the left atrioventricular valve, also known as mitral valve, has 2 cusps. This is the right atrium and right ventricle के बीच वाला tricuspid valve, and left atrium और left ventricle के बीच वाला mitral valve. Tricuspid valve, mitral valve. तो पहले हम लोग ने हार्ट को राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दिया, फिर उसके 4 चेम्बर्स, एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड फिर राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को किसने डिवाइड किया है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। The valves are prevented from opening upwards into the atria by tendinous cords called chordae tendinae. वेंट्रिकल, अभी ब्लड आ गया है वेंट्रिकल में, पर उसको प्रिवेंट भी करना है, वापस एट्रियम में नहीं जाना चाहिए ये ब्लड, तो उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कॉर्डे टेंडिने। दिस कॉर्डे टेंडिने प्रिवेंट्स दिस, वॉल्व्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम ओपनिंग, मतलब बेसिकली वॉल्व्स वो फंक्शन करते हैं, अगर वॉल्व्स वापस ओपन हो गई तो ब्लड वापस ऊपर चला जाएगा, तो कॉर्डे टेंडिने वॉल्व्स का ओपनिंग क्लोजिंग बंद करती है, मतलब रीओपन नहीं होने देती वॉल्व्स को। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है तो उसके बाद ये कॉर्डे टेंडिने जो वॉल्व्स को ओपन कर रही है वो प्रिवेंट करती है उसका रीओपनिंग। दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ द हार्ट। एक्सटीरियर में हम लोग ने देखा हार्ट वॉल वॉज मेड अप ऑफ पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, एंड इंटीरियर में हम लोग ने पहले देखा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स के बारे में, right atrium, right ventricle, left ventricle, and chordae tendineae, which holds the valves from opening backflow, preventing backflow. Abhi, small groups of specialized neuromuscular cells in the myocardium, which initiate and conduct impulses, causing coordinated and synchronized contraction of the heart muscles. Myocardium में जो small groups of neuromuscular cells थे, वो क्या है, वो अभी हम लोग देखेंगे. Firstly, SA node. This small mass of specialized cells lies in the wall of right atrium near the opening of superior vena cava. Superior vena cava का opening जहाँ पे है वहां पे ये lie करता है. Let me show you the superior vena cava. This is the superior vena cava है, इसके opening में यही कहीं पे SA node present है right atrium में.
SA node is known as the pacemaker of the heart because it generates impulses faster than any other part of the heart and it sets the heart rate. SA node क्या है? Pacemaker of the heart. Who is the pacemaker of the heart? SA node, जिसी को क्या बोलते हैं? Sinoatrial node. Firing of the SA node triggers atrial contraction. SA node का firing trigger करता है atrial contraction. फिर AV node. This small mass of neuromuscular tissue is situated in the wall of atrial septum near the atrioventricular valves. I'll show you. This is AV node, atrial septum near the atrioventricular valves. AV node transmits the electrical signals from atria to the ventricles. AV node also has secondary pacemaker function and takes over this role if there is a problem with the SA node itself or with the transmission of impulses from atria. अगर SA node में कोई प्रॉब्लम है तो AV node उसका secondary pacemaker function carry on करता है. Its intrinsic firing rate, however, is lower than that set by the SA node, 40 to 60 beats per minute. SA node is known as pacemaker of the heart and अगर SA node के absence में secondary pacemaker का function करता है AV node, atrioventricular node. Atrioventricular bundle, AV bundle or bundle of His. This mass of specialized fibers originates from the AV node. AV node से originate होता है ये bundle of His. Atrioventricular bundle or bundle of His. This mass of specialized fibers originate from the AV node. AV bundle crosses the fibrous rings that separates atria and ventricles. Then, at the upper end of ventricular septum, it divides into right and left bundle branches. मतलब जैसे atria and ventricle separate हो जाते हैं at the ventricular septum, this AV bundle also divides into right and left bundle branches. देखो, यहाँ पे ये था bundle of His and आगे जाके ये separate हो गया right. This is right bundle branch and this is the left bundle branch. Within the ventricle myocardium, the branches break up into fine fibers called Purkinje fibers. पहले bundle of His था, वो break किया और बनाया उसने right and left bundle branches. वापिस ये break होकर बन गया at the ventricle myocardium into Purkinje fibers. AV bundle branches and Purkinje fibers transmit electrical impulses from the AV node to the apex of the myocardium where the wave of ventricular contraction begins, then sweeps upward and outwards, pumping blood into the pulmonary artery and the aorta. So ये था हमारा, this is your SA node, this is the AV node, this is the bundle of His which divides into right bundle branch and left bundle branch and finally into Purkinje fibers. तो इसे याद रखना है तो पहले SA node, sinoatrial node, AV node, atrioventricular node, फिर bundle of His जिसी को हम लोग बोलते हैं atrioventricular bundle, फिर finally right and left bundle branches and then Purkinje fibers. Pulmonary circulation. This is the circulation of blood from right ventricle of the heart to the lungs and back to the left atrium. राइट वेंट्रिकल से लेके राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है लंग्स में एंड फाइनली इट कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम. अब ये राइट एट्रियम, पहले ब्लड आएगा राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में ब्लड कैसे आता है हमारा? इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा. आई विल शो यू इट वंस अगेन. दिस इज सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज इंफीरियर वेना कावा. सो यहाँ पे राइट एट्रियम में ब्लड आ जाता है फ्रॉम द एंटायर बॉडी. ऊपर वाले ऑर्गन सुपीरियर वेना कावा से ब्लड देंगे और इन नीचे वाले ऑर्गन इंफीरियर वेना कावा के थ्रू. सो हाँ, अभी राइट एट्रियम में ब्लड था, वो आ गया राइट वेंट्रिकल में. फिर राइट वेंट्रिकल से अगर ये ब्लड वाया लंग्स रिटर्न हो रहा है लेफ्ट एट्रियम में तो उसको बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन. पल्मनरी क्यों? लंग्स को ही अलग नाम है पल्मनरी, इसीलिए पल्मनरी सर्कुलेशन. अभी ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स फिर बैक टू लेफ्ट एट्रियम कैसे होता है ये अभी हम लोग देखेंगे. पल्मनरी आर्टरी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल कैरीज deoxygenated blood and further divides into right and left pulmonary arteries. हमारे राइट वेंट्रिकल से एक पल्मनरी आर्टरी जाती है, वो कैरी करती है क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो फर्दर डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी से. मतलब राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी जाएगी
वो डिवाइड हो जाएगी राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में, और ये आर्टरी क्या कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. One special point here, keep it in mind that pulmonary artery is the only artery in the body which carries deoxygenated blood. All the other arteries carry oxygenated blood only. These right and left pulmonary arteries enter right and left lobes of lungs respectively and again redivide there. अब ये राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज राइट एंड लेफ्ट लंग में पहुंच जाती है एंड वहां पे अगेन रीडिवाइड हो जाती है. Exchange of gases takes place from capillaries in the lung and alveoli of the lungs. यहाँ पे जब वो लंग्स के पास पहुंच जाती है फाइनली, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे इनसाइड द ब्लड, एंड दिस टेक्स प्लेस via the alveoli of the lungs. Capillaries containing oxygenated blood merge to form large venules and eventually two pulmonary veins. Two pulmonary veins leaving each lung return oxygenated blood to the left atrium. मतलब बेसिकली राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, उसको ये ऑक्सीजनेट करती है लंग्स के थ्रू और लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में. वापस एक बार एक स्टोरी की जैसे देखेंगे, ठीक है. पहले राइट वेंट्रिकल में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर ये राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी से, जो पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, वहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में जा रहा है. फिर लंग में जाके ये राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग ऑफ लोब के और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लोब ऑफ लंग में पहुंच जाती है. उधर जाके भी ये वापस रीडिवाइड हो जाते हैं. फाइनली इनमें गैस एक्सचेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन इनसाइड आ जाएगा. फिर ये जो कैपिलरीज थी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी तो ऑक्सीजन वाला ब्लड है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमने दे दिया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लार्ज वेन्यूल्स एक साथ आ जाते हैं एंड फॉर्म पल्मोनरी वेन्स. और पल्मोनरी वेन्स, दो पल्मोनरी वेन्स जो लंग से लीव हो रही है अभी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है लेफ्ट एट्रियम में. तो पहले राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के ब्रांचेस, फिर लंग्स, वहां पे कैपिलरी एक्सचेंज, फिर पल्मोनरी वेन्स दो which carry oxygenated blood, and finally to the left atrium. This was all about pulmonary circulation. Pulmonary artery are the only arteries which carry deoxygenated blood, and pulmonary veins are the only veins which carry oxygenated blood. अभी systemic circulation. लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज द पंप फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन. इसीलिए हमने देखा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल का मायोकार्डियम सबसे थिकेस्ट है, क्योंकि ये एंटायर सिस्टम, एंटायर बॉडी को ब्लड सर्कुलेट कर रहा है. इट रिसीव्स ब्राइट रेड ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम. जो लेफ्ट एट्रियम में अभी ब्लड आया था ना, ब्राइट रेड रिच ऑक्सीजन ब्लड, वो ये लेफ्ट एट्रियम पोर कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट्स दिस ब्लड इनटू एओर्टा. एओर्टा एक ब्रांच है, लेफ्ट वेंट्रिकल ये ब्लड इजेक्ट कर देता है एओर्टा में. लेट मी शो यू एओर्टा. दिस वाज, पहले देखो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला गया था, फिर वो लंग में उसका गैशियस एक्सचेंज वगैरह हो गया, वो वापस आ गया कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में. अभी लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से इट विल पास थ्रू द एओर्टा. From the aorta, the arteries divide into smaller systemic arteries progressing to individual organs. एओर्टा से वो आर्टरीज स्मॉलर सिस्टमिक आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है एंड इंडिविजुअल ऑर्गन तक पहुंच जाती है. दिस आर्टरीज रीडिवाइड इनटू सिस्टमिक कैपिलरीज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स. ब्लड अनलोड्स ऑक्सीजन एंड पिक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड. पल्मोनरी सर्कुलेशन में उल्टा हो रहा था, ब्लड अनलोड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड पिक्स अप ऑक्सीजन. सिस्टमिक सर्कुलेशन में उल्टा हो रहा है, ब्लड अनलोड्स ऑक्सीजन एंड पिक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे थे और ऑक्सीजन ले रहे थे, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम लोग ब्लड से ऑक्सीजन दे रहे हैं किसको? सेल को, और कार्बन डाइऑक्साइड बैक ले रहे हैं. In most cases, blood flows through only one capillary and then enters a systemic venules. Venules unite to form systemic vein. Finally, the blood flows back to the right atrium. अभी ये फाइनली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप करके,
वो राइट एट्रियम में आ जाता है, आइदर थ्रू सुपीरियर वेना कावा और थ्रू इंफीरियर वेना कावा। फिर से ये साइकिल प्रोसीड होगा, मतलब पहले द एंटायर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द बॉडी with the help of superior and inferior vena cava is collected into the right atrium. Via the right atrium it enters the right ventricle. Right ventricle से pulmonary artery से होते हुए वो lungs में जाता है, lungs में वो blood oxygenate हो जाता है, पल्मोनरी वेन्स उसको लेके आती है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा के छोटे छोटे ब्रांचेस हो जाते हैं जो पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन तक पहुंचा देते हैं। फाइनली यहाँ पे भी वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेगा, तो अभी ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, वापस वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आ जाएगा एंड द साइकिल कंटिन्यूज। सो पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन हैंड इन हैंड जा रहे हैं। दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन, अ क्विक रिकैप। राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल गया, राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया, फिर पल्मोनरी वॉल्व ओपन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक आर्टरीज में चला जाएगा, फिर यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज हो जाएगा इन लंग्स, फिर पल्मोनरी वेन्स एक साथ आके ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लाके दे देगी। तो ये राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट एट्रियम तक का पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड वॉल्व ओपन, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा, एओर्टा से लेके ये इंडिविजुअल टिश्यूज ऑर्गन्स तक पहुंचा देगी, फिर blood loses O2, gains CO2, and finally again the deoxygenated blood enters right atrium. This was all about pulmonary systemic circulation, outer layer heart wall ka, that is pericardium, myocardium, endocardium, and also the interior of the heart we have covered in this lecture, which was right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, उसके दो valves, bicuspid valve को mitral valve बोलते हैं और tricuspid valve. And here we are completing our lecture. Thank you.